अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। Classification means the system of grouping of living forms on the basis of similarities and differences is called classification. This hierarchy is the system of classification. Hierarchy is the system of classification to which taxonomy categories are placed in order of logical sequence is called hierarchy classification. So different categories of classification are: number one is species, number two is genus, number three is family, number four order, number five class, number six phylum, number seven kingdom. If we will talk about the hierarchy classification, then we have to represent it that the species, it is the lowest form of the category. It is a group of species. It is the basic unit of understanding taxonomy as well as evolution. Species is a group of individuals with similar morphological structures which are able to morphological characters which are able to breed among themselves and produce fertile offspring of their own kind. Individuals of the same species resemble each other closely, structurally and functionally. So this species, the lowest category of living organisms, regarded as the basic unit of classification. Then we have genus. हर एक स्पीशीज, एवरी स्पीशीज इन द यूनिवर्स, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, बॉटनिस्ट्स एंड zoologists, they have given it two names binomial सिस्टम के हिसाब से. तो जैसे हम बात कहेंगे इंसान की, ह्यूमन की, इसका नाम है ह्यूमोस्पेन. ह्यूमो जो है वो जीनस नेम, जेनेरिक नेम है, तो स्पेसिफिक नेम जो है वो स्पेन है. ठीक, अगर हम बाकी बात करेंगे इसके बारे में जीनस और स्पीशीज़ की, एक प्लांट की एग्जांपल अगर हम लेंगे प्लांट पोटैटो. ठीक, हम लेंगे ब्रिंजल. They are placed in the same genus, that is Solanum. तो अब इनका जो जेनेरिक नेम है वो सेम है, सोलिनम ट्यूबरसम पोटैटो के लिए है. यानी कि अब सोलिनम इसका जेनेरिक नेम है, पोटैटो ट्यूबरसम इसका स्पेसिफिक नेम है. So genus is the group of close related species with common ancestry. That is, it is a group of species which are related and have less characters in common as compared to species. Members of genus have identical reproductive system. Then we have third category, that is family. It is represented by group of related genera. जेनस जिनका रिलेट करता है वो फैमिली बनाते हैं. देयर आर मोर similarities
यानी कि दिस represent a group of related genera that are more similar to each other than with the genera of other families. This family, the members of family having several common characters, यहाँ तक इनको सोलिनम जैसे इनका है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी फैमिली थोड़ा कैरेक्टर्स इनको रिजेंबल हो रहा है, यानी कि सोलिनेसी इस पोटैटो और ब्रिंजल की फैमिली है, और दातूरा दे आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली बिकॉज दे रिजेंबल सम कैरेक्टर्स। लेकिन नीचे की तरफ जब जाएंगे तो इनके कैरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इनका अलग हो रहा है। तो इसके बाद ऑर्डर है। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर फैमिली के बारे में और एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि अगर हम कैट की बात कहेंगे, ठीक, अगर हम लायन की बात कहेंगे, कैट को डोमेस्टिका, ये है पेंथरा लियो, belonging to cat family Felidaceae. They both possess similar structures and have relative claws. यानी कि इनके पंजे जो हैं वो सेम हैं, एक कैरेक्टर इनको, तो इनको सेम फैमिली में रखा गया। अब इनके ऑर्डर की जहाँ तक बात करेंगे, इट इज़ द assemblage of family resembling one another in a few characters. These characters are less similar as compared to many in genera, but put in a family. Order member, this order, a number of families having common characters are placed in an order. जब families के बहुत सारे characters सेम हैं तो उनको एक ही order में रखा गया है। जैसे कि हम बोलेंगे कोई हर्बोवर है, कोई कॉर्निवर है, कोई ओमनिवर है। अगर हम फैमिलीज़ की बात कहेंगे, यहाँ पर हम लायन की बात कहेंगे, कॉर्निवर है। यहाँ पर हम बियर की बात करेंगे, कॉर्निवर है। यहाँ पर कैट की बात करेंगे, कॉर्निवर है। ये तीनों कॉर्निवर्स हैं, ये एक फैमिली में थे। अब इनको ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में रखा गया है। अलग अलग फैमिलीज़ थी, कैट की अलग फैमिली थी, इसकी अलग फैमिली थी, बियर की अलग फैमिली थी, लेकिन अब इनको सेम ऑर्डर में रखा गया है। यानी कि अब ये गोश्तखोर हैं, कॉर्निवोर्स हैं। तो अब यहाँ पर इनके कैरेक्टर्स जो वो रिजेंबल हुए थे। नंबर ऑफ फैमिलीज हैव कॉमन कैरेक्टर्स एंड आर प्लेस्ड इन एन ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बियर है, या हम बात कहेंगे डॉग की, कैनेडी, हम कहेंगे कैट, फ्लीडा, दे बिलोंगिंग टू सेम ऑर्डर। Then we have another taxonomical category, that is class. अब क्लास में क्या है? जब सिमिलर ऑर्डर्स, ठीक है, जब नंबर ऑफ फैमिलीज, जब सिमिलर ऑर्डर्स आर दिस प्लेस्ड इन टुगेदर इन ए क्लास। अब यहाँ पर क्या है? अब ये सब देखते हैं हम, इनमें से मैमल कौन कौन है, ठीक है। अब कॉर्निवर खाली यही नहीं है, कॉर्निवर बहुत सारे हैं। अब हमें क्लास इनका लेना है। क्लास में इनको यानी कि सिमिलर ऑर्डर्स और प्लेस्ड टुगेदर इन ए क्लास। फॉर एग्जांपल, अब ये कैट है, लायन है, दे आर ऑल मैमल्स, ठीक। तो इनको ऑर्गेनिज्म को जब रिलेटेड ऑर्डर्स में इनको क्लास में रखा गया है, ठीक। सपोज हमारे पास कैट है, मैमल, इनका ऑर्डर जो है वो मैमेलिया है, ठीक। देन क्लास के बाद और एक हायरार्की ऑर्डर आता है। ये मैंने ऐसे लिखा, अदरवाइज ये, हाँ ठीक है, हम ठीक चल रहे हैं। क्लास के बाद तो एक, जब क्लासेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो
रिजेंबल हो जाएंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, तो many classes with some common characters, they are included in one another taxonomical category that is called phylum. Phylum. ठीक. It includes all organisms belonging to different classes having a few common characters. ठीक. Few common characters हैं. बाद में करूँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा. All animals which have which have vertebral column. Some do not possess vertebral column. ठीक. Some are amphibians. Some are these mammals. Some are reptiles. They उनका इस जब कुछ कैरेक्टर्स इनको आपस में मिलते हैं तो उनको एक ही फाइलम में रखा गया है. जैसे कि हम जिनको नोट कॉर्ड है प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो बिलोंगिंग टू द फाइलम क्वाड्रेटा. दूसरा है फाइलम इनवर्टेब्रेटा. ठीक. तीसरा है फाइलम एम्फीबिया. ठीक. तो इस तरह से जब इनके कैरेक्टर्स कॉमन, लेस कैरेक्टर्स कॉमन हैं, मेनी क्लासेस with some common characters they are included in the same phylum. तो अब फाइलम में इसका फाइलम के बाद जो हमारा लास्ट है दैट इज किंगडम. किंगडम. ठीक. इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, स्पीशीज इज द लोवेस्ट कैटेगरी एंड किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज. ऑल एनिमल्स are included in this kingdom Animalia and all plants are included in kingdom Plantae. So यहाँ पर दो kingdoms हो जाते हैं, एनिमल का अलग, प्लांट का अलग. तो यहाँ किंगडम में it includes all organisms that share a set of distinguished common characters. जैसे कि हम प्लांट किंगडम बोलेंगे, एनिमल किंगडम बोलेंगे. तो इस तरह से हमारा जो हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिस इज़ हायरार्की क्लासिफिकेशन. यहाँ पर मैं आपको बुक पे भी आपको दिखा सकता हूँ किताब वाले ने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है. दिस इज स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पर हम बोलेंगे इसको दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर, एंड दिस इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दिस इज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो दिस इज़ अबाउट द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. सो कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन में है. अब हम अगर हम कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे किंगडम. किंगडम के बाद फाइलम. फाइलम के बाद डिवीजन दिया आता है प्लांट का है. क्लास. क्लास के बाद ऑर्डर. ऑर्डर के बाद फैमिली. फैमिली के बाद जीनस. जीनस के बाद स्पीशीज. ठीक. स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी एंड दिस किंगडम इज द हाईएस्ट category of the taxonomy. So there are two systems of classification. This Coriolanus is known as father of taxonomy. Natural system of classification is based on morphological characters and was proposed by Bentham and Hooker. There is another that is polygenetic system of classification was proposed by Engler and Prentill and is based on the evolutionary relationship. So this is all about today's topic. Thank you.